everyone. Let me welcome once again today all of you on this evening's live program on Beyond Sugar. We are streaming this program live on Facebook and YouTube, and I'm your host, Sanjeev Mehra. As you are aware, Beyond Sugar has been created for all of you in collaboration with Indian Society of Nephrology. In the month of March, internationally, this month is also observed as International Kidney Day, where the objective is to raise awareness about good kidney health and also do whatever is required for the community to provide equitable access to all the patients किडनी के रोग की जानकारी के बारे में उसकी क्या रोकथाम के लिए करना चाहिए उस बारे में और कि क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन हो सकते हैं उस बारे में Today, I'm very glad that we have with us Dr. Rajan Isaacs, who's a leading nephrologist from the city of Ludhiana. Sir, welcome to the show. Thank you, Sanjeev. Thank you so much. आज हम बात करेंगे डॉक्टर राजन से एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम हिम कि chronic kidney disease में what are the signs and symptoms which we should be looking at and various aspects related to good kidney health. But before I take questions from you, I will formally introduce him. He is one of the noted luminaries in the field of nephrology. He graduated in medicine and did his masters as well in medicine from Christian Medical College, Ludhiana. Post that, he did his super specialized training in nephrology from prestigious All India Institute of Medical Sciences (AIMS), and for last 3 decades, Dr. Rajan अपनी services provide कर रहे हैं in the city of Ludhiana. Initially, he was in CMC Ludhiana, where he pioneered in setting up the whole nephrology facility for the patients across North India, and now he is in Deepak Kidney Care Center at Ludhiana. He has also been, an achievement of being actively involved in the first cadaver kidney transplant, which happened in the country way back in '94. And many research and publications are there on his credit. So we know कि आज, we're going to talk to someone whom we can fully rely on and take his every word as a wisdom as a pearl of wisdom and increase our knowledge. Sir, with this, let me hand over the stage to you for your opening remarks about the good kidney health or the importance of World Kidney Day, and if you'd like to set the context for the topic. Thank you, Sanjeev, for the wonderful introduction. Chronic kidney disease is actually more like a pandemic. एंड हर 10 आदमी में एक आदमी को क्रॉनिक किडनी डिजीज है. दिस इज द प्रोजेक्टेड डेटा एंड दैट विल बी इन बाय 2025. तो हर 10 आदमी में एक को क्रॉनिक किडनी डिजीज है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी मेडिकल प्रॉब्लम है. और ये खाली इंडिया में नहीं है, ये वर्ल्ड ओवर है. इंडिया में ये ज़्यादा है क्योंकि शुगर के मरीज हमारे पास ज़्यादा हैं. तो ये इसके बारे में लोगों को नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम इसको प्रिवेंट कर सकें. सबसे ज़्यादा अगर हो जाती है तो उसको हम कैसे मैनेज कर सकें. तो आज हम जो है मेरे ख्याल से यही सारा कुछ डिस्कस करेंगे कि कितनी जल्दी हम इसको पिकअप करें और इसको या प्रिवेंट कर सकें या इसको अर्ली स्टेजेस में ही दबा दें. जी, शुक्रिया सर for setting up the context. Let me, sir, start with a beginner's question for everyone's awareness, even those who are naive to the subject. That fundamentally we all know that we have two kidneys in the body, and if you will like to scientifically, let's say, explain in simple language what are the basic functions kidney does and what is actually the chronic kidney disease for a common person to understand. देखो ऐसा है, हमारे पास हर इंडिविजुअल के पास 2 किडनीज होती हैं. ये बॉडी का सबसे वाइटल ऑर्गन होता है. अगर हम किडनी का वेट लें तो अप्रोक्सीमेटली 150 से 160 ग्राम की किडनीज होती हैं हमारी. लेकिन इसको 20% या 20% ब्लड सर्कुलेशन जाता है टोटल उसमें से. और अगर आप ये कैलकुलेट करो तो अप्रोक्सीमेटली 180 लीटर ब्लड जो है किडनी को हर दिन जाता है साफ होने के लिए.
अगर हम 180 लीटर ब्लड देखते हैं तो अगर हम एक बाल्टी 10 लीटर की लेते हैं तो अंदाजे से 18 लीटर और 18 बाल्टी खून जो है हमारा रोज हमारी किडनीज वॉश करती हैं। तो ये जो है इट इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट ऑर्गन, और इट इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज हार्ट एंड ब्रेन। अब किडनी को हम लोग ये सोचते हैं कि किडनी सिर्फ खून को साफ करती है, जितने पॉइजन्स हैं और वो सब निकाल देती है, लेकिन किडनी के बहुत से फंक्शंस होते हैं जो कि ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होते। जो किडनी है ये जो फिल्टर करती है और वो ब्लड को प्योरीफाई करती है, ये तो है ही है। इसके अलावा जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो हमारी किडनी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। एक हमारा सिस्टम होता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जो कि मेन प्लेयर किडनी है। तो हमारा ब्लड प्रेशर का की रेगुलेशन जो होता है वो किडनीज के थ्रू होता है। जिनको हाई ब्लड प्रेशर होता है हम सोचते हैं हार्ट की वजह से, एक्चुअली हार्ट की वजह से नहीं, किडनी की वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं। इसी तरीके से जो हमारा खून बनता है वो एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है एरिथ्रोपोइटिन, जो कि बोन मैरो में जाता है और उसकी वजह से खून हमारा बनना शुरू हो जाता है। अगर वो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन नहीं बनेगा तो हमारे को खून की कमी हो जाती है। इसी तरीके से जो एसिड और बेस है उसका बैलेंस जो है वो किडनी करती है। अगर तेज़ाब जो बॉडी में बनता है वो नहीं निकलता तो तेज़ाब शरीर में इकट्ठा हो जाता है। जो पानी हम पीते हैं और जो खाने से पानी बनता है उसका बैलेंस किडनी मेंटेन करती है। अगर वो प्रॉपरली नहीं साफ होता है या पानी नहीं निकलता है तो शरीर में पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, सूजन आनी शुरू हो जाती है। जो हमारी शुगर का मेटाबॉलिज्म है, जो शुगर है हमारी, हम सारे टाइम खाना तो खाते नहीं रहते, लेकिन हमारी ब्लड की शुगर तो कांस्टेंट रहती है। तो किडनी, लिवर के अलावा किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जो कि शुगर बनाती रहती है, जिसको हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं, जिससे हमारी ब्लड शुगर की लेवल्स मेंटेन रहती है। जब हमारी किडनी फेल होनी शुरू हो जाती है या कम काम करना शुरू हो जाती है तो उसमें हमारा जो शुगर है वो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। इसी तरीके से विटामिन डी जो है वो सन से स्किन बनाती है, लेकिन उसका एक्टिव फॉर्म जो है वो किडनी बनाती है। तो इस तरीके से किडनी के एक फंक्शन नहीं है, बहुत सारे फंक्शन हैं। जो हम दवाइयाँ खाते हैं या और बहुत सी चीज़ें खाते हैं वो उसमें से जो उसके मेटाबोलाइट्स वगैरह होते हैं या वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी किडनी निकालती है। तो इट इज़ अ पावर हाउस ऑफ द बॉडी एंड इट इज़ अ वेरी वाइटल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। मेरे ख्याल से मैंने समझा दिया कि क्या होता है किडनी का। जी, जी, जी। आई थिंक सर, जैसे आपने इतने इलैबोरेट तरीके से आज हमें बताया कि किडनी क्या-क्या करती है मतलब हमारे शरीर में, आई थिंक दिस इज़ गुड इनफ फॉर everyone, every viewer to understand that this is, as rightly said by Dr. Rajan Isaacs, a powerhouse in the body and a very, very vital and important organ. So, sir, now what we call as chronic kidney disease, if you can help us understand that, what is that basically, यस, and what are the causes or risk factors, because of which a chronic kidney disease may happen. हाँ, जो हमारी किडनी है वो इंडिविजुअल यूनिट्स की बनी हुई होती है, जिसको हम एक नेफ्रॉन बोलते हैं। तो किडनी में अंदाजे से एक 1 मिलियन नेफ्रॉन से ऊपर होता है। तो ये हर नेफ्रॉन अलग अलग तरीके से काम करता है। अब क्रॉनिक किडनी डिजीज वो होती है जिसमें जो हमारे किडनी का जो टिश्यू है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है और आहिस्ता 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 किडनी का काम कम होना शुरू हो जाता है और ये परमानेंटली डैमेज हो जाती है। तो इसका ये है कि शुरू में किडनी थोड़ी कमज़ोर होती है, फिर और कमज़ोर होती है, फिर और कमज़ोर होती है। और जब किडनी कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है तो बॉडी का जो जो वो है, जोर है, जो सही काम किडनी होती है उसके ऊपर भी पड़ जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता वो भी डैमेज हो जाती है। तो एक बारी ये प्रोसेस शुरू हो जाता है तो ये जाके डायलिसिस पे या किडनी ट्रांसप्लांटेशन के ऊपर रुकता है। अगर हम 10 में से एक इंडिविजुअल को लेके चलेंगे कि क्रॉनिक किडनी डिजीज हो रही है तो आप समझ सकते हो कितने सारे लोगों को आगे आने वाले फ्यूचर में डायलिसिस की और ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत पड़ेगी।
तो ये परमानेंट डैमेज टू द किडनी है, जो कि रिजल्ट करती है एक सिंड्रोम ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज को कहते हैं हम इसको। जी। सो आपने बताया सर कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द किडनी व्हिच इज ऑफ कोर्स जो काफी इलैबोरेट और फंक्शंस हैं किडनी के, और अगर किडनी को अगर डिजीज अगर है क्रॉनिक किडनी डिजीज, सो व्हाई डज दैट हैपन एज वेल। सर आप थोड़ा सा इसके ऊपर हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे कि बेसिक रिस्क फैक्टर्स, आर देयर एनी पीपल हु आर एट हायर रिस्क कि जिनको क्रॉनिक डेफिनेटली किडनी है, डिजीज को जिनको डेफिनेटली जरा है। ध्यान रखना चाहिए। इसमें अगर आप लेके चलते हैं, हम अपना डायलिसिस यूनिट देखते हैं, तो उसमें से अगर हम 10 मरीज देख लेते हैं, तो उसमें से 8 मरीज को शुगर की बीमारी होती है, जिसकी वजह से किडनी खराब हुई होती है। तो नंबर 1 जो कारण है किडनी फेलियर का, वो है डायबिटीज, शुगर की बीमारी। नंबर 2 जो है वो है हाई ब्लड प्रेशर, जिसमें किडनी की बीमारी ये सेकंड कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। फिर मोटापा जो है, ज़रूरत से ज़्यादा मोटापा, उसकी वजह से किडनी डिजीज़ हो जाती है। चौथा जो है, जिन लोगों को हार्ट की बीमारी है, दिल की बीमारी, उसमें से अंदाजे से 50% लोगों की किडनीज फेल होनी शुरू हो जाती हैं। तो जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल वगैरह प्रॉपरली कंट्रोल में नहीं होता, उन लोगों को किडनी डिजीज होनी शुरू हो जाती है। ओवर द काउंटर जो हम पेन किलर्स लेते हैं, सिंपल हमारा यहाँ दर्द हुआ, वहाँ दर्द हुआ, हमने दवाइयाँ खा ली, तो इनडिस्क्रिमिनेट पुअर कंपनीज की और मतलब कि सब स्टैंडर्ड कंपनीज के पेन किलर्स वगैरह लेने से भी किडनी फेल हो जाती है। फिर कुछ लोग हैं जिनको ड्रग एडिक्शन होती है, जिसमें हेरोइन और कोकेन ये कंटेमिनेटेड होती हैं, तो उससे की वजह से किडनीज फेल हो जाती हैं। फिर हैवी मेटल्स हम कभी कभी यूज़ कर लेते हैं जहाँ पे हमारी किडनीज कमज़ोर होती हैं, जैसे हम चांदी के उसमें ग्लास में पानी भर के पीते हैं, और तांबे के उसमें पानी भर के पीते हैं। ये हैवी मेटल्स लीच हो जाते हैं, उसकी वजह से भी अगर हमारे किडनी कमज़ोर है तो और डैमेज हो जाती हैं। ये जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जिसमें अनलेडेड पेट्रोल हम यूज़ कर रहे हैं, आई मीन लेडेड पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं, अनलेडेड नहीं, लेडेड पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं, ये कारण है। तो बहुत से एनवायरमेंटल और फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से किडनी फेल हो सकती है या डैमेज हो सकती है। बट द लीडिंग कॉज इज डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, ये लीडिंग कॉजेज हैं किडनी की फेलियर के। जी। जी सर, आपने जैसे बताया ये सारे रिस्क फैक्टर्स अब जिन लोगों को है, और आपने कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी बताए। नाउ प्लीज आल्सो हेल्प अस अंडरस्टैंड सर कि व्हाट आर द अर्ली साइंस और सिम्टम्स व्हिच पीपल हु आर एट हाई रिस्क दे शुड लुक आउट फॉर, कि अगर उनको ऐसे किसी भी सिम्टम का अगर पता चले तो वो जाके अपनी जांच कराएं या डॉक्टर से मिलें। संजीव, ये जो पॉइंट है ना, ये मैं एक्चुअली बहुत केयरफुली डिस्कस करना चाह रहा था तुमसे, कि किडनी डिजीज जो है ना, ये साइलेंट किलर होती है। जो किडनी का फंक्शन है वो हम जीएफआर से मेजर करते हैं। हमारा नॉर्मल जीएफआर 120 मिल्स पर मिनट होता है। तो मेजॉरिटी ऑफ जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं, जिसमें हमें पता लगता है कि भाई किडनी वाकई में डैमेज हो रही है, ये तब आना शुरू होता है जब हमारा किडनी का फंक्शन 70%, दैट इज 70% ऑलरेडी कम हो चुका होता है। अब ये 120 से जब हमारा जीएफआर कम होके 70% कम हो जाता है, उस स्टेज में सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। तो तब तक तो ज़्यादातर आपकी किडनी परमानेंटली डैमेज हो चुकी होती है, और हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते उसके बाद, क्योंकि जैसे मैंने बताया वो विश्व साइकिल है, बढ़ता चला जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपना डेली मेडिकल मतलब एनुअल मेडिकल चेकअप कराएं। एनुअल मेडिकल चेकअप में हम इस चीज़ को अर्ली पिकअप कर सकते हैं, यानी कि अर्ली स्टेजेस में हम पिकअप कर सकते हैं। तो बहुत से केसेस में हम इस चीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। बहुत से चीज़ टाइम हमारे पास टाइम होता है कि हम ट्रीटमेंट के साथ उसको स्लो कर दें या वहीं के वहीं रोक दें। सो बिकॉज दिस इज द मेजर पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, हर इंसान को ये अवेयर होना चाहिए कि सिम्टम्स जो होते हैं किडनी के बहुत लेट आते हैं।
उससे पहले बहुत कुछ डैमेज हो जाता है, और एनुअल मेडिकल चेकअप जो है इंसान का बहुत ज़रूरी है। अब अगर फंक्शंस आपको किडनी के मैंने जैसे बताया छोटे छोटे जो हैं, मतलब कि जो फंक्शंस है उसको हम लेके चलें तो हम सिम्टम्स के बारे में भी समझ सकते हैं। अगर हमारे को खून की कमी हो जाती है, जैसे एरिथ्रोपोइटिन की डेफिशिएंसी होती है, तो इंसान को थकावट होनी शुरू हो जाती है। जो रूटीन में वो पहले काम करते थे वो नहीं कर पाते, चलने पे थक जाते हैं, सांस फूलनी शुरू हो जाती है, पैरों में सूजन आनी शुरू हो जाती है। तो खून की कमी की वजह से ये हो जाता है। अगर हमारा जो यूरिन है उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, कभी कुछ लोग हैं जिनकी यूरिन की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, कुछ लोग होंगे जिनकी यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, और कुछ लोग होंगे जिनकी यूरिन की फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। उसके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूंगा, लेकिन चेंज ऑफ यूरिनरी फ्रीक्वेंसी हो सकती है लोगों को। यूरिन का में ब्लड आ सकता है, लोगों को फ्लैंक्स में पेन हो सकता है जिनमें जिनको स्टोन आता है। यूरिन के अंदर झाग आना शुरू हो जाता है, अगर हमारे उसमें प्रोटीन आ रही है तो उसमें झाग आना शुरू हो जाता है यूरिन के अंदर। हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जिन लोगों को शुगर की बीमारी है उनकी शुगर कम होनी शुरू हो जाती है। हम ये सोचते हैं कि हमारी शुगर ठीक हो रही है, असल में हम एक परेशानी में से दूसरी परेशानी में जा रहे होते हैं। वो इसलिए क्योंकि शुगर किडनी बनाना बंद कर देती है तो हमारी शुगर कम होनी शुरू हो जाती है। तो ये कुछ कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स है, लेकिन ये बहुत लेट आना शुरू होते हैं। और लोगों को भूख कम लगनी शुरू हो जाती है, जी कच्चा होना शुरू हो जाता है, उल्टी आनी शुरू हो जाती है। हमारी कंसंट्रेशन की जो कैपेसिटी है, जो हमारी जो मेंटल इंटेलेक्ट कॉग्निटिव फंक्शंस जो हैं वो हमारे कमज़ोर पड़ने शुरू हो जाते हैं, बेहोशी आनी शुरू हो जाती है, और एडवांस स्टेजेस में दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मोटी बात यह है कि अगर हम टाइमली अपना मेडिकल चेकअप करवाएं तो ये सारी चीज़ें अवॉइड हो सकती हैं। जी जी डॉक्टर आइजक्स, so thank you for again sharing this in detail. But sir, I want to understand little deeper in this for my viewers. आमतौर पर हमारे यहाँ पर स्क्रीनिंग लोग काफी या तो कोई बीमारी ऐसी हो जाए या हॉस्पिटल जाना पड़े उनको, उसके बाद ही उनकी जांच पड़ताल अक्सर डिटेल में होती है। सो कैन यू हेल्प अस अंडरस्टैंड कि जो भी आपने ये बताए साइंस एंड सिम्टम्स, आर देयर एनी साइंस आउट ऑफ दिस जो अर्ली आते हो, जो पहले एक या दो ऐसे कुछ सिम्टम आते हो जो विच कैन बी सीन एज अर्ली साइंस, ताकि कोई बिना सेंस ऑफ डिनायल में जाए इमीडिएटली जाके अपनी स्क्रीनिंग कराए या डॉक्टर से मिले, या ऐसा कुछ नहीं है? एक्चुअली हमें रिस्क फैक्टर्स समझने चाहिए कि कौन से लोग एट रिस्क हैं। जो हमारे जितने भी डायबिटिक्स हैं, जिनको 5 या 6 साल से डायबिटीज़ है, उनको अपने टेस्ट करवा लेने चाहिए। इसी तरीके से जिन भाई बहनों को हाई ब्लड प्रेशर है, मतलब कि पहले टाइम पे ही जब उनका डायग्नोसिस हुआ है, उस टाइम पे हेल्थ केयर वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो किडनी के डेफिनेटली देखा जा सके। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें अर्ली स्टेज के ऊपर आंखों में हल्की सी सूजन आनी शुरू हो गई, थोड़ी सी थकावट आनी शुरू हो गई, भूख कम लगनी शुरू हो गई। तो अगर इस तरीके के कोई सिम्टम्स होते हैं तो हमेशा मेडिकल चेकअप करवा लेना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में पेशेंट हमारे पास तब आता है जब वो बिल्कुल ही एडवांस स्टेज पे होता है। तो अगर हमें रिस्क फैक्टर्स पता है कि पे हमारे को शुगर है, हमारे को ब्लड प्रेशर है, हमारा मोटापा है, हम ओवर द काउंटर मेडिसिन लेते हैं, तो हमारे को रेगुलर चेकअप करा लेना चाहिए। शॉर्ट ऑफ दैट कोई ऐसा ना अर्ली सिम्टम नहीं है कि आप पिकअप कर लो।
जी। सो आई थिंक जैसे डॉक्टर राजा राइजर्स ने दोबारा से एम्फेसाइज किया इस चीज को लेके कि आप साइंस और सिम्टम आने के इंतजार ना करें, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब तक आपको साइंस या सिम्टम्स आएंगे तब तक 70% डैमेज हो चुका होगा किडनी को ऑलमोस्ट। एंड देयरफॉर उन्होंने एम्फेसाइज किया कि अगर आपको रिस्क फैक्टर है, जैसे बताया कि डायबिटीज है, अगर अगर आपको, या हाइपरटेंशन है, या ओबेसिटी है, तो आप जो है अपनी स्क्रीनिंग रेगुलर जांच इसकी कराएं, सारे बॉडी फंक्शंस की। और अगर आपके डॉक्टर उसको पहचान सही समय पर पहचान पाएंगे, अगर आपको कुछ अर्ली उसके अंदर रिपोर्ट्स में आपके क्रॉनिक किडनी डिजीज के लक्षण अगर आते हैं तो। सर, स्क्रीनिंग के ऊपर आपने जैसे एम्फसाइज किया, सो व्हाट इज द एज आफ्टर विच, लेट्स से किसी को जैसे डायबिटीज है नॉर्मली 40-45 साल के, अगर जैसे कॉमन मैन ही हैज डायबिटीज फॉर 4-5 years नाउ, व्हाट इज योर, और हाइपरटेंशन है उनको, तो आपकी एडवाइस क्या है उनको कि कितनी फ्रीक्वेंसी पे उनको करानी चाहिए? और अगर किसी को ये रिस्क फैक्टर्स मान लीजिए अभी शुरू ही हुए हैं, तो इज देयर एनी एज क्राइटेरिया ऑल्सो कि आप बताना चाहेंगे कि भाई इस एज के बाद तो सबको स्क्रीनिंग करानी ही चाहिए अपनी? देखिए, ऐसा है कि जो हमारे टेस्ट्स हैं उनकी लिमिटेशंस हैं। अगर हम क्रिएटिनिन लेके चलते हैं तो हमारी क्रिएटिनिन तब चेंज होनी शुरू होती है जब ऑलमोस्ट 50% किडनी का काम निबट जाता है। तो इससे बेटर रहता है कि हम जीएफआर अपना कैलकुलेट करें। तो जीएफआर के हम दो तरीके से हम देखते हैं। एक मेजर्ड जीएफआर होता है जो कि थोड़ा सा कम्बरसम होता है। एक हम क्रिएटिनिन अपनी वेट और उसके हिसाब से वो इंटरनेशनली कुछ इक्वेशंस हैं, जैसे सीकेडी एपी है, एमडीआरडी इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन लेके आपका जो जब भी, अब तो एक्चुअली सारे लैब्स को भी ये दे दिया गया है कि जब आप क्रिएटिनिन टेस्ट करते हैं तो जीएफआर कैलकुलेट करके दे। तो जब हम मेडिकल चेकअप कराते हैं तो आप अपना जीएफआर ज़रूर कैलकुलेट करवाएं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि यूरिन में प्रोटीन आनी शुरू हो जाती है। तो यूरिन में प्रोटीन आने से ये होता है, ये एक अर्ली सिम्टम होता है। इससे मतलब कि जीएफआर नॉर्मल भी हो तब भी ये अर्ली मार्कर है कि किडनी में डैमेज होना शुरू हो गया है। तीसरी चीज़ ये है कि बहुत से लोग अल्ट्रासाउंड करवाते हैं रूटीनली बाकी चीज़ों के लिए, जैसे गॉल ब्लैडर, और उसमें उसमें भी किडनी को हमेशा इवैल्यूएट करते हैं देखने के लिए कि उसका साइज़ छोटा तो नहीं हो गया है। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे कि जीएफआर, यूरिन में एल्ब्यूमिन आना, और अल्ट्रासाउंड, जिसे हम अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं कि आपकी किडनी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। सो एक किडनी हेल्थ के लिहाज से ये तीन चीजें आपको स्क्रीन करानी चाहिए। सर, एनी एडवाइस किस फ्रिक्वेंसी पर करवानी चाहिए? ये साल में एक बार, या 2 साल में एक बार, या 6 महीने में? कुछ ऐसी गाइडलाइंस हैं आपकी ये तरफ से? ये अलग अलग है, बट एनुअल इज मोर देन इनफ। ओके। सो अगर आपको रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे डॉक्टर राजा राइजक्स ने बताए, तो आप अपनी स्क्रीनिंग किडनी हेल्थ की जरूर कराएं, और इसमें आपके डॉक्टर या आपको 2-3 टेस्ट बताएंगे। सो अगर सर, वी लाइक टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू, इफ अर्ली स्टेजेस में अगर आप किडनी डिजीज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, देन आर देयर द रेमेडियल मेजर्स? कैन यू कंट्रोल द प्रोग्रेशन ऑफ किडनी डिजीज? हाउ डज a patient gets helped in that situation? See, picking up the disease in the early phases gives us a lot of time. जो दो मेन फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं, इनफैक्ट तीन फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं प्रोग्रेशन ऑफ किडनी डिजीज़ की। इज़ नंबर वन इज़ द ग्लाइसीमिक कंट्रोल, मतलब कि हमारी शुगर हमारा अगर कंट्रोल में है तो लिटरली में स्टॉप हो जाता है अगर हम अर्ली फेजेस में पिकअप कर लें। नंबर टू ये है कि हमारा ब्लड प्रेशर जो है, हमें टाइम मिल जाता है कि हम ब्लड प्रेशर को प्रॉपरली कंट्रोल में ला सकें ताकि फर्दर किडनी डैमेज ना हो सके। नंबर थ्री है हमारी बेसिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। जो किडनी और हार्ट है, ये दोनों साथ के साथ चलते हैं। अगर किसी को किडनी की बीमारी है तो टाइम के साथ उसे हार्ट की बीमारी होती ही होती है। और अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो अंदाजे से 50% लोगों को किडनी की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। और जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाता है तो किडनी की बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़नी शुरू हो जाती है। तो
अगर हम अर्ली फिक्स इसको पिकअप कर लें और इन तीनों फैक्टर्स को हम कंट्रोल कर लें तो डेफिनेटली हम उसको वहाँ पे स्लो कर सकते हैं। और जो ड्यूरेशन ऑफ डिजीज है उसको इंस्टेड ऑफ 2-3 years वी कैन एक्सटेंड इट टू 15-16 years ऑल्सो के बिफोर दे रीच द एंड स्टेज डिजीज। आजकल नए ड्रग्स भी आ गए हैं जैसे SGLT2 इनहिबिटर्स हैं और फिनेरिनोन है। इनको अगर हम अर्ली स्टेजेस में हम स्टार्ट कर देते हैं तो ये कार्डियोवास्कुलर प्रोटेक्टिव भी होते हैं और रीनो प्रोटेक्टिव भी होते हैं। तो इसका हमें ये एडवांटेज हो जाता है कि हम उसको स्लो कर सकते हैं। दैट इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ इट। सेकेंड इज कि हम पेशेंट को प्रॉपरली एजुकेट कर सकते हैं, उसको हम उसकी प्रॉब्लम बता सकते हैं, उसके फैमिली को हम एजुकेट कर सकते हैं। तो कलेक्टिवली पूरा सपोर्ट आ जाता है और इंसान को जो होता है कि हौसला मिल जाता है और प्रॉपरली वो चलता रहता है, तो उससे उसकी बीमारी पे काफ़ी हेल्प मिल जाती है और प्रोग्रेस इतनी तेज़ी से नहीं करती। तीसरी चीज़ ये है कि हम इनको अगर हमें टाइम भी मिल जाता है मॉनिटर करने के लिए कि एक इंडिविजुअल प्रॉपरली मेडिसिन ले रहा है या नहीं ले रहा है, हमने जो उसे एडवाइस किया है वो हो पाया है या नहीं हो पाया है। तो अर्ली डिटेक्शन के बहुत से एडवांटेजेस होते हैं जो कि हम जिससे पेशेंट को बेनिफिट कर सकता है। कुछ जी सिचुएशंस ऐसी होती है कि हम जो मर्जी कर ले बीमारी ने बढ़ना ही बढ़ना है। तो ऐसी सिचुएशंस में हम प्लान कर सकते हैं कि हम ट्रांसप्लांटेशन की तरफ को जा रहे हैं या डायलिसिस की तरफ को जा रहे हैं, तो एक्सेस प्रिपेयर करके पहले ही ट्रांसप्लांटेशन की तैयारी करी जा सकती है ताकि डायलिसिस के ऊपर टाइम कम रहे और वो पेशेंट अपना प्रॉपर एक मोडालिटी से दूसरी मोडालिटी में आराम से शिफ्ट हो सके। तो अर्ली डिटेक्शन का ये बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। okay. So I think so. Dr. Rajan once again emphasizes that early detection का क्या importance है किडनी हेल्थ मैनेज करने में। अगर जल्दी से अगर आपके डिजीज की प्रोग्रेशन अगर पकड़ में आ जाती है तो आपके डॉक्टर्स के पास आज के डेट में बहुत सारे मेडिकल सॉल्यूशंस हैं आपको हेल्प करने के लिए और काफी लॉन्जिविटी बढ़ाने के लिए उसी किडनी की। और सेकेंडली उन्होंने ये भी बताया कि अगर फिर भी अगर प्रोग्रेशन अगर हो ही रही है तो जो नेक्स्ट स्टेप्स भी हैं उसके वो भी अच्छे से प्लान किए जा सकते हैं। सर ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि आर देयर एनी पर्टिकुलर लाइफस्टाइल मेजर्स आप मतलब इन द करंट इकोसिस्टम which are डेफिनेटली responsible देर for देर the देर सॉरी, जी आप कंप्लीट करिए क्वेश्चन। No, I just wanted to because in the current ecosystem, that we all have sedentary lifestyles. We are eating different kind of all things. So, are there any lifestyle factors which precipitate health of kidney or chronic kidney disease यस, इट इज जिनके इट बारे इज में इट लोग इज ध्यान रखें? ये बहुत ज़्यादा और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। लाइफस्टाइल जो है ये हमारे हाथ में होता है, डॉक्टर के हाथ में नहीं होता। अब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे पहले तो ये है कि जी आप शुगर अपनी कंट्रोल में रखिए। खाली पेट हमारी शुगर जो है 100 के आसपास होनी चाहिए, खा पी के हमारी शुगर 120 के आसपास होनी चाहिए। ये यंगर इंडिविजुअल्स के लिए है। ओल्डर इंडिविजुअल्स के लिए जो है हम टारगेट HbA1c अप्रॉक्सीमेटली 7.5 के करीब लेके चलते हैं। तो फर्स्ट फॉरमोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपकी शुगर कंट्रोल में होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो 130/80 या 140/90 के बीच में रहना चाहिए और अगर इसमें हम मेंटेन कर सकते हैं तो हम अपनी किडनी को बचा के रख सकते हैं। तीसरी चीज़ स्मोकिंग जो है उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है विद किडनी डिजीज़। तो सिजेशन ऑफ स्मोकिंग इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। चौथा चीज़ ये है कि ओबिसिटी मोटापा जो है वो हमारा जो है डायरेक्टली रिलेटेड है किडनी फंक्शन पे। तो अगर हम अपना बॉडी मास इंडेक्स अप्रॉक्सीमेटली 30 के करीब ला सकते हैं या जितना भी हम कम कर सकते हैं उससे डेफिनेटली किडनी फंक्शन को फ़ायदा होगा। Then alcoholism is also associated with worsening of kidney function। तो उसमें हमें जो है ज़रूरी है कि हम इसको एब्सटेन करें जितना भी हो सकता है।
तो ये इम्पॉर्टेंट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है. देन एक्सरसाइज. एक्सरसाइज जो होता है दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इम्प्रूव्स द सर्कुलेशन of the body and it also improves the circulation of the kidneys. तो उससे हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स और बाकी सारी चीज़ें निकलने में बेटर हो जाता है क्योंकि सर्कुलेशन हमारी इम्प्रूव कर जाती है. चौथी चीज़ है न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन इज द कॉर्नर स्टोन. अगर हम प्रॉपर न्यूट्रिशन बैलेंस्ड डाइट लेते हैं तो हमारी किडनीज प्रोटेक्टेड रहती है. अगर हम ज़्यादातर ये जंक फूड्स लेते हैं जिसमें हमें पता ही नहीं कि कौन से केमिकल्स जा रहे हैं, क्या जा रहा है और कौन से कौन से जो चीज़ें हैं वो टॉक्सिक है और किडनीज को डैमेज कर सकती हैं, तो वो चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए. यूजुअली नेचुरल खाना है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, चिकन, फिश, एग, ऑल दीज थिंग्स नॉर्मली यू कैन हैव. पर ये जंक फूड में नहीं पता है कि क्या क्या डालते हैं और एग्जॉटिक फूड्स में पता है और भी नहीं पता है कि क्या डालते हैं, तो यू शुड अवॉइड दीज. देन ओवर द काउंटर मेडिकेशंस हमें नहीं लेनी चाहिए क्योंकि कुछ एक मेडिसिन होती हैं जो कि किडनी को डैमेज कर देती हैं. अनफॉर्चुनेटली हमारे जूनियर डॉक्टर्स को भी बहुत से टाइम नहीं पता होता है कि कौन सी सेफ है कौन सी नहीं सेफ है. तो वन शुड ऑलवेज बी केयरफुल इन टेकिंग मेडिसिन फ्रॉम द ओवर द काउंटर. तो मेरे हिसाब से ये फ्यू चीज़ें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस इम्पॉर्टेंट हैं पेशेंट के लिए. जी, सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स बिकॉज ये आपके अपने कंट्रोल में है और अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखें तो आप अपनी किडनी को बचा सकते हैं. सर, आपसे आखिरी सवाल लेंगे सिंस वी आर आल्सो रनिंग आउट ऑफ टाइम, बट बिफोर आई आस्क दैट, हमारे व्यूअर ने एक एक क्वेश्चन डाला हुआ है मिस्टर भानु प्रताप, जिनको पिछले अराउंड 25 ईयर्स से ये बता रहे हैं कि इनको क्रॉनिक किडनी डिजीज है और इन्होंने डिटेल्स भी डाली हुई हैं अपनी. वुड यू लाइक टू answer to him? Just let me read it. भानु प्रताप जी की ना दो तीन चीज़ें हैं. एक तो इनको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है. क्रेटनिन अगर इनका 3.35 और 4 के है तो ये सीकेडी स्टेज 4 में जाते हैं. दूसरी चीज़ ये है कि बोथ किडनीज में हाइड्रोनेफ्रोसिस है. इस स्टेज पे सर्जरी का कोई रोल नहीं होता तो वो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. इनका पोस्ट वॉइड रेजिडुअल यूरिन 20 ml है. इनकी प्रोटीन आनी शुरू हो गई है. इसका मतलब किडनीज के ऊपर जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसकी वजह से ग्लोमेरुलाई डैमेज होना शुरू हो गया है. इनका हीमोग्लोबिन ज़रूरत से ज़्यादा हाई है, 17.5. इसका मतलब ये है या तो ये इंजेक्शन लगवा रहे हैं जिसकी वजह से ये ज़्यादा है तो उसकी डोज को एडजस्ट करना चाहिए. तीसरी चीज़ ये है कि इनका कैल्शियम जो है ये बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से हो सकता है कि ये विटामिन डी ज़्यादा ले रहे हैं तो इनको विटामिन डी का लेवल्स जो है एक बारी चेक करना चाहिए. इनका एडवाइस यही रहेगा कि ये अपना बीपी जो है 130-80 की रेंज में रखें. एवरी 3 मंथ्स अपने टेस्ट करवाएं. अपने विटामिन डी लेवल्स और पैराथॉर्मोन लेवल्स चेक करवाएं ताकि इनके कैल्शियम और फास्फोरस का बैलेंस मेंटेन करा जा सके. और ट्रांसप्लांटेशन में सिर्फ एक ही किडनी लगती है, 2 किडनीज नहीं लगती हैं. तो जो भी डोनर होगा वो एक किडनी देगा जो कि ट्रांसप्लांट हो जाएगी और वो ठीक हो जाएंगे. लेकिन इनके यूरिनरी सिस्टम को असेस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम अगर ट्रांसप्लांट ऐसे ही कर देंगे तो और रास्ते में रुकावट है तो ट्रांसप्लांट किडनी पे भी असर आ सकता है. आई होप हमारे व्यूअर को अपना रिस्पांस मिल गया होगा और इन्होंने अपना पीटीएच लेवल भी शेयर किया अपना. सर, एक आपने बताया, आज हमने ज़्यादातर रिस्ट्रिक्ट किया अपने सवालों को साइंस एंड सिम्टम्स अबाउट क्रॉनिक किडनी डिजीज और रोल क्या है किडनी का और कॉजेज, रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं. एंड यू हैव बीन वेरी काइंड सर, आपने हमारे व्यूअर्स को बताया आज. मगर आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई कि जो रिस्क फैक्टर्स हैं जिन लोगों के पास डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है,
सो ये दे शुड बी मोर केयरफुल, एंड जब तक सिम्टम्स आते हैं शायद काफी देर हो जाती है। मगर सर अक्सर इस तरह के पेशेंट जो होते हैं, दे आर यू नो with their general practitioners, or with their close by physician for these kind of treatment. So what is your message for these treating physicians, that what is the time that patient should be referred to a nephrologist? Is there any guidance, or a suggestion from you on this? हमारी कंट्री में कोई गाइडलाइंस नहीं है, लेकिन मेरे को लगता है कि हर एक इंसान की एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब हमारे पास पेशेंट आया है तो हम एक लिस्ट बनाएं उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम उन प्रॉब्लम्स को हम हैंडल कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम उन प्रॉब्लम्स को हैंडल नहीं कर सकते हैं तो एक सीनियर पर्सन की या एक कुलीग की एक ओपिनियन लेने में कुछ नहीं जाता है। तो सब जब भी आते हैं पेशेंट, जैसे ब्लड प्रेशर का आया, हमने यूरिया क्रिएटिनिन यूरिन रूटीन यूरिन एसीआर कराया, उसमें अभी कोई भी एबनॉर्मेलिटी आई है, एक ओपिनियन लेने में कुछ नहीं जाता है। तो मेरा मैसेज अपने कुलीग्स को यही है कि योर सीनियर्स एंड नेफ्रोलॉजिस्ट एंड रेस्ट ऑफ द पीपल हु आर देयर आर योर फ्रेंड्स, और उनको हमेशा आप कंसल्ट कर लें। ये पेशेंट के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए रहता है। तो जितना जल्दी हो सके आपको अगर कोई प्रॉब्लम लगती है तो एक ओपिनियन ले लीजिए, ताकि आप अपने पेशेंट को अच्छी तरीके से केयर दे सकें। Ji, thank you so very much for that guidance. There is another question which we'll try and take. So there is a patient, or Sarabjit Singh Tora ji. They have a kidney problem for last 1.5 years. Its creatinine is 2, calcium 8.8, and protein +1. Anything you want to comment for him? इनका सबसे बड़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये डायबिटीज़ है या नहीं है इनको। तो फॉर 1.5 years क्रिएटिन इज 2, कैल्शियम इज 8.8, हीमोग्लोबिन रिलेटिवली जो अभी इनका किडनी फंक्शन है काफ़ी अच्छा है। क्रिएटिन 2 का मतलब GFR इज एटलीस्ट 50 mL/minute, जो कि अगर प्रॉपरली मैनेज किया जाए तो इनको काफ़ी समय मिल सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। तो इन्हें मेन चीज़ यही है कि अगर डायबिटीज़ है तो शुगर कंट्रोल करें, अपना अगर ब्लड प्रेशर है तो उसे कंट्रोल में ला सकें। जो अपनी प्रोटीन इनटेक है, जो डाइटरी, जैसे मैंने बोला था, प्रोटीन इनटेक आप अराउंड 0.8 grams/kg के हिसाब से रखें। कोई ऐसी चीज़ें ना लें जिसकी वजह से आपका पोटेशियम बढ़ जाए, तो एक डाइटरी कंसल्ट होनी ज़रूरी है। कोई ऐसी दवाई ना लें जो कि पेन किलर्स वगैरह हैं या हेवी मेटल्स वगैरह हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। एंड डेफिनेटली जो आपके फिजिशियन हैं उनसे कहिए एक बारी नेफ्रोलॉजिस्ट ओपिनियन ले लें। जी, जी शुक्रिया Dr. Rajan for replying him. So today's program was focused on basically whenever we talk about kidney disease, या जब भी हमें nephrologist का ख्याल आता है, we think of dialysis, kidney transplant, and very very serious situations. और कई बार मतलब it's a very psychological, it impacts a patient or the caregivers as well. But today's program was focused on that you don't need to wait for that long to meet your nephrologist. As Dr. Rajan Isaacs told you, that look out for those early symptoms. Look out if you have risk factors. Get yourself screened timely. And if you गेट योर सेल्फ स्क्रीन टाइमली, अगर सही समय पर अगर आपकी जांच हो और आप सही समय पर नेफ्रोलॉजिस्ट को अपने मिलें, तो आपकी किडनी को काफी हद तक और खराब होने से बचाया जा सकता है। काफी साल आपकी किडनी की लाइफ में जोड़े जा सकते हैं। सो टुडेज फोकस वाज दिस, एंड आई होप कि हमारे व्यूअर्स को ये चीजें जो सर ने बताई समझ आई होंगी और इससे बेनिफिट होगा। सर, बिफोर आई कंक्लूड द प्रोग्राम, आई हैंड इट बैक टू यू if you would like to share anything in summary, or want to still emphasize anything जो हमसे अभी तक मिस हुई। मेरे हिसाब से इसमें एक ही जो टेक होम मैसेज है वो है कि जब तक साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं ना डॉक्टर कुछ कर पाएगा और ना पेशेंट कुछ कर पाएगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि ये साइलेंट किलर है। आप अपना जो है हेल्थ चेकअप एनुअली ज़रूर करवाएं,
ताकि इस चीज़ को अर्ली पिकअप कर सके, स्पेशली जिनको ये रिस्क फैक्टर्स है, जिनको रिस्क है किडनी डिजीज़ की, जिनको शुगर है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, मोटापा है, तो इन इंडिविजुअल्स को डेफिनेटली अपना किडनी एनुअली चेकअप करवा लेना चाहिए, क्योंकि जब तक सिम्टम्स आते हैं उसके बाद कोई कुछ नहीं कर पाता। Well, so thank you very much, Dr. Rajan. I think आपने you have summarized, in these two lines everything what we have discussed today. Get yourself screened if you have risk factors. Reach your doctor timely. Save your kidney. That's the message which you get from him today. So with this, we thank you, sir, for joining us today. I thank all my viewers as well. अगर आपके फैमिली में या आपके फ्रेंड सर्कल में if there is someone who has these risk factors जो डॉक्टर राजन ने बताए, आप ये प्रोग्राम का लिंक उनके साथ शेयर करें. दिस डिस्कशन कैन बी यूजफुल फॉर देम, लाइफ सेविंग फॉर देम. अगर आप लुधियाना में रहते हैं या पंजाब में, नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, यू कैन ऑलवेज विजिट डॉक्टर राजन आइसैक्स एट दीपक हॉस्पिटल इन लुधियाना इफ यू नीड मोर असिस्टेंस. अदरवाइज अगर आप कहीं दूर रहते हैं, बाहर रहते हैं, तो आप अपने नियरेस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट से या फिजिशियन से जरूर मिलें. विद दिस, थैंक यू सो वेरी मच सर. थैंक यू सो वेरी मच. थैंक यू सो मच. गुड नाइट.